Welcome my dear students. Again, it's your second video of law of chemical combination. So, in first video already we discussed about law of chemical combination like mass conservation law and law of definite proportion, which is also known as law of constant proportion. So, these laws basically explain how atoms combine together and form a molecule. इट मीन्स कि एटम्स कैसे ज्वाइंट होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन करते हैं तो वो एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं एंड दिस रूल्स और दिस लॉज आर नॉन एज लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. दिस टू लॉज विच आर law of constant proportion and law of conservation of mass is already discussed in previous video. Now the third rule, which is law of multiple proportion. So according to this law, law of multiple proportion states that when two elements combine to form more than one compounds, here two different elements combined and form more than one compounds, then the different masses of one element which combined with the fixed mass of other elements bear a small whole number ratio to one another. And this one is law of multiple proportion. So in this rule, basically two different elements like carbon and oxygen, these are two different elements here. So when two elements combine to form more than one compound, so carbon and oxygen, these are two elements which form two different compounds like carbon monoxide and also carbon dioxide. Different more than one compound, then the different masses of one element. So here different masses of one element, that is oxygen, because in carbon monoxide mass of carbon is 12 and mass of oxygen is here 16, and in case of carbon dioxide it is mass of carbon is 12 again and mass of oxygen is 32 here. So then the different masses of one element, that is oxygen, which bear 16 and here 32, which combined with fixed mass of other elements, so that fixed mass is carbon here, bear a small whole number ratio to one another. So which one bear a whole number ratio? So these two different masses, सो जो दो एलिमेंट्स के जो डिफरेंट मैसेज हैं ये ऑलवेज एक होल नंबर रेशियो को बेयर करते हैं, लाइक ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. सो इन बोथ ऑफ दिस द रेशियो इज 16:32, सो इट्स बेयर 1:2. So this one is one simple whole number ratio when two different elements combined and form more than two compounds. So अगर वो दो elements हैं और दो elements आपस में मिलकर अगर दो से ज़्यादा compounds का अगर formation कर रहे हैं तो जो कि मैस जिनका कि डिफर मैस अगर एक सेम मैस वाले के साथ अगर कंबाइंड हो रहा है तो सेम वाला तो सेम है ही, जो डिफरेंट वाला है इनके जो रेशियोज होंगे वो ऑलवेज एक सिंपल होल नंबर रेशियो को बेयर करते हैं. Not only in this example but also in another example like sulfur and oxygen, these are two different elements and these two different elements combined and form more than two compounds like SO2, like SO3 here. So the different masses of oxygen, which is oxygen is 32 in SO2 and 48 in SO3, but the mass of sulfur is fixed here, sulfur both are 32. So these oxygen must bear a simple whole number ratio like 32:48, it gives 2:3. So the mass of oxygen is always bear a simple whole number ratio. So when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element which combined with the fixed mass of other elements bear a small whole number ratio to one another, and this rule is known as law of multiple proportion. Actually this law is at first explained by जॉन डाल्टन. तो जॉन डाल्टन ने इसको सबसे पहले अपने डाल्टन मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस रूल को एक्सप्लेन किया था जिसको कि आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं. और ये जितने भी डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं ये टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको एक्सप्लेन किया है. जैसा कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, वैसे ही ये जो रूल था आपका जिसको कि आप मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हो ये एक्चुअली जॉन डाल्टन के द्वारा प्रपोज किया गया था. और उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अगर कभी भी
ऐसा हो कि अगर दो एलिमेंट्स मिल रहे हो और एक से ज़्यादा अगर कंपाउंड का वो फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक एलिमेंट जो कि सेम मैस वाला होगा और दूसरा एलिमेंट जो कि अलग अलग मैसेस के साथ वो कंबाइंड होंगे, तो जो एटम की अलग अलग मैस के साथ कंबाइंड होंगे वो ऑलवेज एक सिंपल होल नंबर रेशियो को बेयर करेंगे, जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इसी में, सो आप वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दैट्स ऑल्सो वन परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर लॉ ऑफ multiple proportion. Like hydrogen and oxygen, these two elements combined and form more than one compound like H2O and also H2O2. So here fixed mass hydrogen is fixed here, but the mass of oxygen in water is 16 and the mass of oxygen in hydrogen peroxide, that is H2O2, is 32. So this also bear a simple whole number ratio like 16:32. It gives 1:2 here. Now another example for this, nitrogen and oxygen. So these two elements nitrogen and oxygen ये मिल करके कई different complexes के formation करते हैं, कई oxides का formation ये करते हैं. For example nitrogen and oxygen N2O का आपका formation करता है, N2O के साथ ये NO का भी formation करता है, उसके साथ साथ ये N2O3 का formation करता है, ये NO2 का formation करेगा, साथ ही साथ ये N2O5 का फॉर्मेशन करता है. सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ nitrogen and oxygen. So when two elements combine to form more than one compound, so here more than one compounds are formed. These are 1 2 3 4 5. So actually नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर पे ये काम करता है, इसलिए ये कई ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे थे कि चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात हो, या फिर H2O एंड H2O2 के बारे में हम लोगों ने देखा, तो इन सभी में कार्बन कार्बन सेम था, S आपको सेम मिल गया था, H2 मिला था. लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है. तो हम लोग यहाँ पे इनको बराबर पहले कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा. जैसे अब अगर इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास को अगर आप कंपेयर करते हो, तो नाइट्रोजन मास इज 14, so 28, 14 2s are 28. So in N2O, mass of nitrogen is 28 and mass of oxygen is 32 here. So sorry, not oxygen, oxygen का mass हमारा 16 होगा यहाँ पे, 16. In case of NO, नाइट्रोजन का mass हो जाएगा हमारा 14 and oxygen का mass हमारा हो जाएगा again one oxygen, so 16. No problem. So nitrogen N2O3. So N2 it means नाइट्रोजन का फिर से हमारे पास मास आ जाएगा 14 2s are 28 and oxygen it becomes 48. In case of NO2 again nitrogen is 14 and O2, so 16 2s are 32. In case of N2O5 nitrogen is 28, 14 2s are 28 and oxygen mass of oxygen atom is 16, so 16 5 ja 16 80. Now nitrogen is not constant or not fixed, so when two elements combine to form more than one compound, then the different masses of one element, so oxygen is completely different here, which combined with fixed mass of other elements. सो नाइट्रोजन का हमको फिक्स्ड करना होगा. तो नाइट्रोजन को आप यहाँ पे कैसे फिक्स कर सकते हो, तो मोर और लेस दिस वन इज 28 28 28 बट दीज टू आर 14, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो वी ऑब्टेन हियर अगेन 28 एंड दिस 14 ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट 28 हियर. सो आप अगर नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑक्सीजन को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो इट गिव्स 32 अगेन हियर. सो 32 into 2, so it gives 64. Now the ratio of oxygen in all these compounds is 16:32:48:64:80, and this one is one simple whole number ratio में ये चला जाएगा आपका 1:2:3:4:5.
सो दिस वन इज वन सिंपल होल नंबर रेशियो में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस तरह से किसी भी कंपाउंड में आप जो कि दो एलिमेंट्स के मिलने से अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। Now the next one is law of multiple proportion. So next one is law of reciprocal proportion. So in multiple proportion, basically two elements are involved, but in case of reciprocal proportion, three elements must be involved. So according to law of reciprocal proportion, when two elements combined separately with a fixed mass of third element, मैंने कहा क्या कि जो मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा इसमें आपका दो एलिमेंट्स होता है और उनसे मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स फॉर्म्ड होते हैं और उसमें आप एक सेम वाला होता है और दूसरा डिफरेंट वाला। तो डिफरेंट वाले के जो मास के रेशियोज होते हैं वो सिंपल होल नंबर में होते हैं। बट इन केस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, then the ratio of masses in which they do so bear a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। तो वो आपस में जो कंबाइंड हो रहे हैं उनके साथ, जैसे कि सपोज अगर हमारे पास कार्बन हो और दूसरा कोई भी एलिमेंट अगर एक सल्फर है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि when two elements combined separately with a fixed mass of third element। सो यहाँ पे हमारे पास टू एलिमेंट्स हैं, दीज आर कार्बन एंड सल्फर। सो दीज आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन विच इज थर्ड एलिमेंट। सो कार्बन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली सल्फर ऑल्सो कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ द रेशियो ऑफ masses of carbon and oxygen in carbon dioxide is actually 12:32, and in case of sulfur dioxide the ratio of mass of sulfur and oxygen is 32:32. Mass of sulfur is 32 and oxygen is 16, so 16 into 2 it gives 32 again. So 32 into 32. Now when two elements combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bear a small whole number ratio to the ratio of the masses in which they themselves combined. Now आप अगर यहाँ पे देखोगे कि कार्बन एंड सल्फर के अगर हम मास की अगर हम बात करें जो कि ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइंड हो रहा है, दैट इज 32 एंड 32। तो कार्बन एंड सल्फर के जो रेशियोज हैं वो कितने हैं? सो दीज आर कार्बन एंड सल्फर की अगर हम बात करें जो कि डिफरेंट मास वाला है तो उसका है कितना? 12:32। सो आप अगर सिंपल इसको लेके आते हो तो 4 3 12 एंड 3:8 के रेशियो में आपको मिल रहा है। नाउ हाउ कार्बन एंड सल्फर कंबाइंड एंड फॉर्म अ कंपाउंड? सो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CS2। Now what is the ratio of carbon and sulfur in CS2? So C:2S की अगर हम बात करें, so carbon is again here 12 and S2 sulfur is 32 into 2 it gives 64. Now 3:16. सो दिस वन 3:8, 3:16। तो आप अगर इनके अगर आप रेशियो को अगर इनके रेशियो के साथ अगर मिलाते हो तो दे बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली, these two elements combined separately with a fixed mass of third element, so oxygen is here third element, then the ratio of masses in which they do so, so the ratio of their masses carbon and oxygen is 12:32, sulfur dioxide is 32:32. So here oxygen is constant 32 and 32, so ratio of carbon and sulfur is 3:8 एंड कार्बन एंड सल्फर जो दोनों आपस में कंबाइंड होगा एंड CS2 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो ये बनाएगा 3:16 रेशियोज में। अब आप अगर इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको एक सिंपल होल नंबर मिलेगा। जैसे चलो इसमें आप उससे अगर डिवाइड कर दो, सो 3/8 डिवाइडेड बाय 3/16, सो 3 3 कैंसिल हियर, 8 2 16, सो इट गिव्स 2:1
and this one is one simple whole number ratio for this one and this one. इन दोनों के जो रेशियोज होंगे वो कुछ इस तरह के सिंपल होल नंबर रेशियो को बेयर करेंगे, एंड दिस लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सो एक्चुअली ये अलग लॉ नहीं है. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज बेसिकली कम्बिनेशन है आपका कांस्टेंट एंड मल्टीपल का, तो आप इसको अलग काउंट नहीं करते हो. टोटल 5 ही हम लोगों को लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के फॉर्म में आप पढ़ते हो, जिसमें से कि फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड दिस वन इज नॉट योर फोर्थ. ये हैज लॉ आप इसको बोल सकते हो कि दिस वन इज एडिशनल. जो थर्ड है तो थर्ड के साथ ये एडिशनल है, एंड द फोर्थ इज गै-लुसाक लॉ एंड द फिफ्थ वन इज एवोगाड्रो लॉ. नाउ अनदर एग्जांपल फॉर रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो एक चीज़ और भी हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज जब भी आप डिफिनिट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर तो हम एटम्स के प्रोपोर्शन की बात करते हैं कि वो मैसेस में ऑलवेज आप किसी भी सोर्स से लेके आओगे तो एटम्स के रेशियोज जो मैस के अकॉर्डिंग टू होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड रेशियो को बेयर करेंगे. मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमेशा हम लोगों को 2 एलिमेंट मिलता है. 2 एलिमेंट से ही बनने वाले डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप स्टडी करते हो, लेकिन जब आप रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में आते हो तो आपको 3 अलग अलग एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करना पड़ता है. जैसे अब मैं यहाँ पे अनदर एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, सो आवर 2 एलिमेंट्स आर सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड दिस 2 कंबाइंड विथ हाइड्रोजन विच इज थर्ड एलिमेंट. सो हाइड्रोजन एंड सल्फर अगर आपस में कंबाइंड होगा तो क्या बनाएगा, H2S का फॉर्मेशन करेगा. वैसे ही ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगर मिलेगा तो वाटर बनाएगा. तो आप यहाँ कह सकते हो कि सर हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों का फिक्स्ड है, तो बच कौन रहा है हमारे पास, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो यहाँ पर जो हमारा रेशियो है वो है 2:32, एंड इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 2:16. सो यहाँ पर जो सेम वाला है वो हमारा कौन सा है, तो हाइड्रोजन का है जो दोनों में सेम है. अब है कि हमको सल्फर एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें दैट इज 32:16. So 32 sulfur is to oxygen is 32:16 which is 2:1. So जो डिफरेंट मास है उनका यहाँ पर जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 2:1. अब सल्फर एंड ऑक्सीजन इटसेल्फ अगर कंबाइंड होंगे तो ऑलवेज सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे. दोनों ही केसेस में इस रूल को आप वेरीफाई कर सकते हो. तो जैसे ही ये कंबाइंड होगा तो यहाँ पर अब सल्फर एंड ऑक्सीजन के जो रेशियोज होंगे तो वो होंगे सल्फर, मास ऑफ सल्फर इज हियर 32 and the mass of oxygen is 16 into 2, that is again 32, so it bears 1:1. Now this one is 2:16, so it gives 1:, so this one is 2:1. Sulfur and oxygen in this case that is 2:1, and sulfur and oxygen in this case it is 1:1. So just we get the ratio from this one and this one. So आप अगर किसी में भी किसी से भी आप डिवाइड करो, आप इससे इसमें करोगे तो 2:1 मिलेगा, यहाँ से यहाँ करेंगे तो 1:2 मिलेगा. तो आप अगर इसको अगर डिवाइड करते हो तो फिर से आपको 1/1 by 2/1, so it again 1:2. So the ratio is again here one simple whole number ratio. So according to reciprocal proportion law, when 2 elements combined separately with a third element with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bear a small whole number ratio, the ratio of masses in which they themselves combined. तो इनके साथ जो themselves आपस में जो वो combined हो रहे हैं तो उसके केस में और इसके केस में अगर दोनों का अगर डिवाइड करते हो तो ऑलवेज आपको एक सिंपल होल नंबर रेशियो आपको मिलता है. सो दिस वन इज नॉट योर फोर्थ लॉ, इट इज हैज लॉ आप इसको बोल सकते हो कि वन एडिशनल लॉ, बिकॉज ऑलरेडी आई टोल्ड कि दिस 3 आर बेसिक लॉज एंड दिस 2 आर बेसिक लॉ. सो टोटल 5 लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है हमारा. जो फोर्थ वन जिसको यहाँ पे मैं फोर्थ गै-लुसाक लॉ को बोल रहा हूँ और इसे मैंने रेसिप्रोकल को हैज लॉ बोला है क्योंकि ये एक एडिशनल होता है, क्योंकि ये इन्हीं के कम्बिनेशन से इसको बनाया गया है, ये कोई अलग रूल नहीं है आपका. Next one is gay-Lussac law. So according to, actually this law is based on product formation which are in gaseous state. So gay-Lussac law जब भी आप applicable होगा तो ये always एक gaseous product and gaseous reactant के ऊपर applicable होता है. मतलब ये कि ये rule आप वहीं applicable होगा जहाँ पर कि हमारे reactants भी gaseous formed में होंगे and product भी अगर gaseous formed में है. तो वैसे केस में जो reactants के जो volume का ratio होगा वो भी आपस में एक
सिंपल होल नंबर को बेयर करेंगे, साथ ही साथ वो एक प्रोडक्ट के साथ भी वो उनका जो रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड होगा या सेम होगा या फिर आप कांस्टेंट बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में आपको मिलता है, अगर ये क्लोरीन के साथ अगर मिल रहा है जो कि गैसियस स्टेट में है सॉरी, so product is here HCl. Now 2 volume of HCl for balancing this reaction. So 1 volume of hydrogen react with 1 volume of chlorine and form 2 volume of hydrochloric acid. So when gases react, they do show in volume which bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of product formed in gaseous state. So इसमें हमको फ़ायदा क्या होता है कि इससे कि अगर आपके पास दिया गया है कि सपोज वी हैव 50 ml हाइड्रोजन गैस, सो since it is 1 volume of hydrogen combined with 1 volume of chlorine, it means कि volume of chlorine is also 50 ml, it cannot be changed, and the product formation is must be 2V, that is 2 into 50, so it gives 100 ml volume. नाउ यहाँ पे इस रिएक्शन से ज़्यादा बेटर हम लोग और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। दिस वन इज़ वन एग्जांपल नो डाउट, बट इसमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि सर 1 मिलके कहीं 2 तो नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो 1 मिलके यहाँ पे 2 नहीं हम लोग दिखा रहे हैं। अनदर एग्जांपल, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combined together in presence of iron catalyst, high temperature and high pressure, Haber process. So ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। Now balance this reaction. 3. It means what? 1 volume of nitrogen combined with 3 volume of hydrogen and form 2 volume of ammonia. So it means what? कि if we have 100 ml of nitrogen, then 100 ml nitrogen must be combined with 300 ml of hydrogen, because 3 volume of hydrogen is used during this reaction. Now what is the product value? It is 300 and 100, it is 400 ml. So no, actually it is 2 volume. So 2 into, again volume value is 1 here, that is 100. So 2 into 100, it is 100 ml, 200 ml. It means what? Ki when 100 ml nitrogen and 300 ml hydrogen react together, then they form 200 ml of ammonia. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जब एक आपका जो प्रोडक्ट है वो 100 ml है, तो आपका ये भी आपका 300 ml आ रहा है, बिकॉज दिस इज 3 वॉल्यूम एंड ये 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर रखा है। सो दिस वन इज 2 वॉल्यूम, सो 2 वॉल्यूम वैल्यू इज हियर 1, तो 100 ml, so 2 into 100 it gives 200 ml. So it means what कि 100 ml नाइट्रोजन 300 ml हाइड्रोजन अगर ये रिएक्ट करेंगे तो ये 200 ml ही अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, ये 400 ml अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज ये एक होल नंबर रेशियो को बेयर करेंगे जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा. सो व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन गैसियस स्टेट. सो यहाँ कंडीशन हमारा है कि जो प्रोडक्ट हो दैट शुड बी इन गैसियस स्टेट, रिएक्टेंट मस्ट बी इन गैसियस स्टेट. नाउ वन न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक. Suppose we have 100 ml ethane which combust in oxygen and form carbon dioxide and water. So what is the required amount of oxygen here? So my question is ethane, the chemical formula of ethane is C2H6 react with oxygen and form carbon dioxide and water as product. So water यहाँ पर जो भी स्टेट हो, बट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में हम एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं. ऑक्सीजन इज ऑल्सो हियर गैस, इथेन इज ऑल्सो गैस. Now this one is not a balanced reaction, so at first balance it, 2 atom of carbon is there, so now multiply it by 2. Now hydrogen is 6 here, so multiply it by 3, so 3 2 is 6 and 6 hydrogen is here and 2 carbon is already adjusted. Now how many oxygen? 2 2 is 4 and 3 7, so it gives 7 by 2. So आप इसको बैलेंस करने के लिए पूरे सिस्टम में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो. So this one is 2, this one is 7, 4 and this one is 6 here.
So this one is balanced chemical reaction, and my question is 100 ml. So it means what? कि 2 volume of ethane react with 7 volume of oxygen and form 4 volume of carbon dioxide and 6 volume of water if this water is in their gaseous state. It means in vapor phase. अगर vapor phase में है तो 6 वॉल्यूम, वहाँ पे वाटर हमारा फॉर्म्ड हो रहा है. इट मीन्स कि 6 वॉल्यूम होगा. तो अगर हमको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ इथेन इज हियर 100 ml, सपोज रिक्वायर्ड अमाउंट हमारा जो गिवन अमाउंट ऑफ इथेन है दैट इज 100 ml. सो अगर 100 ml है, 100 ml इट मीन्स व्हाट? इट इज 2 into 50, 2v, सो 2 into 50. सो वॉल्यूम वैल्यू हमको मिल रहा है 50. सो 7 into 50 इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, that is 350 ml oxygen is required for burning 100 ml of ethane. So if we have to burn 100 ml ethane, so we must have to require 350 ml oxygen. And what amount of carbon dioxide is formed here? So 4 into 50, that is 200 ml. So 200 ml carbon dioxide is formed, and 6 into 50, that is 300 ml water vapor is formed. So it means what? Ki if we burn 100 ml, so only here one given condition, that is 100 ml ethane is given. So if we burn 100 ml ethane, so we must have to require 350 ml oxygen, and after burning or after combustion it provides 200 ml carbon dioxide and also 300 ml water vapor. So the fifth one is Avogadro law. According to this law, when all physical conditions like temperature, pressure, all physical conditions remains constant, then equal volume of gases contain equal number of molecules. Suppose, so according to Avogadro law, if all physical conditions remains constant, then equal volume of gases contain equal number of molecules. Suppose we have 100 ml nitrogen gas kept in this cylinder, and all physical conditions if remains constant, then again 100 ml bucket आपके पास अगर है और आपने प्रेशर एंड टेम्परेचर को आपने अगर कांस्टेंट रखा है और इसके अंदर अगर हमने अमोनिया गैस अगर फिलअप कर रखा है, सपोज दिस वन कंसिस्ट x मॉलिक्यूल, देन दिस वन ऑल्सो कंसिस्ट x मॉलिक्यूल. Because all physical conditions remains constant, temperature, pressure, all remains constant, then equal volume of gases consist equal number of molecules. So this is your fifth law of chemical combination, which is Avogadro law.